Hello students, today we are going to discuss about the first unit electrostatic of physics of plus 2 class. So before starting electrostatic, we will continue with the first chapter of Coulomb law. So basically we are going to study about the numericals and the conceptual problem of the electrostatics of the Coulomb law. But in this chapter, before starting the conceptual and numerical, we are going to proceed with some of the basics. The basics you have earlier studied, that is about the force. Firstly, main is charge. Now the charge is either denoted by capital Q or denoted by small q. Second thing is the force between the two charges, point charges. Suppose there are 2 point charges Q2, Q1, distance is R. So the force between the two charges is given by 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square. Now this epsilon naught is called absolute permittivity of free space. But if the two charges are placed in some medium, then we're going to use the word as a force medium is equal to 1 by 4 pi epsilon. Epsilon word is going to use for the case of medium. Now, for if I compare both these forces of vacuum and second one is a medium, then we get a new constant that is called dielectric constant K. Dielectric constant K is a force vacuum to force of medium. So if I divide them, we get epsilon by epsilon naught, and this epsilon by epsilon naught is also called epsilon R, that is relative permittivity of medium. Now these are the some of the basics and also the property of the charge, that is quantization Q is equal to plus minus Ne, where N is equal to 1, 2, 3, so on up to this. These are the some of the basics which are going to be used today in this chapter. Okay? Now we are going to start with the first numerical and conceptual of the electrostatic of chapter first, Coulomb law. Now students, comes to the first numerical. Two identical point charges small q each are kept 2 meters apart in air. A third point charge capital Q of unknown magnitude and sign placed on line joining the charges such that the system remain in equilibrium. Find the position and the nature of capital Q. Now in this case, the one word is going to show here, that is equilibrium. So I stress on the word equilibrium. Now what is equilibrium? In physics, equilibrium means that is the system in which total force acting on it is equal to 0. Now if I ask about the equilibrium of the charges, so the condition that the charges are in equilibrium first is that the charges should be collinear. Collinear means first of all you have to clear that they act along the same line. And in our statement there is also written line joining the charges. So means the condition of collinear is going to obey. Second condition is that all the three charges should not be of same sign. They should be of a different sign. Main thing is that the two conditions should be satisfied. First is collinear, they should be in straight line. Second, they should be do not possess same magnitude and same sign. Now it means clear that the sign of capital Q is different from the small q.
or sign of small q is different from the capital Q. Now we want to find the first is position. Now listen here, there are two charges A and B at a point A and B, small q, small q. I placed this capital charge Q at a point C. So distance between them is 2 meter. So first of all, I want to find position. Now, for finding the position, I will use the condition of equilibrium. Now, equilibrium means sum of force is equal to 0. So the force between A and C of second, force between B and C, and third is force between A and C. The sum of all these three forces is going to be equal to be 0. This means total force is equal to 0. So for finding the position, बिल्कुल सिंपल है. देखो जी, पोजीशन फाइंड करने वास्ते ਤੁਸੀਂ बिल्कुल सिंपल करना की है सारे नाल पहला. देखो एक आ फोर्स है, एक फोर्स आ है, ठीक है जी. सो मैं फोर्स फाइंड करदा ए सी विचकार, एक मैं फोर्स फाइंड कर लेना बी सी विचकार. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ कि ए सी फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. सो आई विल यूज विद साइन मैग्नीट्यूड साइन. नाउ so let us suppose the distance between A and C is what, x, and the remaining distance is total distance कितना बेटा 2, x आ गया, कितना बन गया जी 2 minus x. now ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਮਝਾਇਆ ਕੂਲਮਸ ਲਾਅ ਦਾ, ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀਗਾ 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ Q1 Q2 ਬਾਈ r ਸਕੁਅਰ. ਸੋ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ Q1 ਬੇਟਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ small q, capital Q by r कितना x square. 1/4 pi epsilon naught q is small capital Q, small q by 2 minus x the whole square. जो बेटा कैंसिल कर दो अपना, लो बेटा आप कैंसिल करता, this is going to be cancel, q is going to be cancel. Now x square is equal to 2 minus x square. Now so taking the squaring under root of both sides, okay, as we take under root, so we get x is equal to 2 minus x. Don't use sign of plus minus, neglect it. So x plus x, it become 2. So 2x is equal to 2, x is equal to 2 by 2 means 1. So we will clear that the position of this capital Q charge is at 1 meter, means यहाँ पर है, मतलब approximately कितने बेटा हो सेंटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ. सो पोजीशन फाइंड कर ली. दूजी बेटा अपनी गल हैगी ਇਹਦੇ ਕੀ फाइंड करना ਆਪਾਂ सेकंड थिंग ਆਪਾਂ बेटा फाइंड करनी नेचर. ਇਹਦਾ नेचर किस तरह होगा? नेचर मीनस आइदर इट इज़ प्लस साइन और इट इज़ ऑफ माइनस साइन. सो ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮ ਆਫ ਫੋਰਸਿਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ. ਫੋਰਸ ਆਫ A ਤੇ C ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਈ, फोर्स BC कंपेयर कर ली, अपने साइन कट्टे गए, चार्ज कट्टे गए, पर आप चार्ज तो फाइंड करना है. हुण आप करांगे कि आप नैक्सट दो फोर्सिस इस तरह कंपेयर करांगे कि चार्ज ना आपस कट्टिया जाए, ठीक है, बाकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. नैचुरल गल है जी. सो आप सम ऑफ फॉर्मूला लगाने नेचर. सो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यूज़ कर रहा फोर्स इन्हां दोनों विचकार AC विचकार प्लस एक A ते B दे विचकार. क्योंकि कंकरेंट फोर्सेस है, सारे का सम 0 होगा, ये कोई प्रॉब्लम वाली गल नहीं हैगी, ठीक है जी. सो नैचुरली गल है जो तुम इनू इधर लैके जाओगे हुण द साइन विल बी ऑफ
माइनस। सो मैं तुहानूं देखो जी फस्ट टाइम तो क्लीयर गल करती सी कि जिस टाइम ते इक्विलिब्रियम आऊगा क्लीनियर होगा, क्लीनिंग हो गया। सैकेंड तुहानूं क्या सीगा मैगनीट्यूड एंड साइन विल नॉट रिमेन सेम, साइन सेम नहीं रहूगा तिने चार्जिस का। तुहाडे सामने है जी माइनस साइन आ रहा, माइनस साइन आ रहा इनका मतलब साइन की होगा डिफरेंट होगा, दो चार्जिस का एक होगा तीजे का माइनस होगा, ठीक है जी। सो अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन भी की होगी बेटा ओके होगी जी। सो बिल्कुल सिंपल आप जस्ट वैल्यू पुट करते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट। हाँ जी ए विच देखो बेटा ए सी की पिया जी स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, डिस्टेंस आप हुणे फाइंड किया 1 का स्केयर 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है जी। ए बी देखो ए बी च डिस्टेंस कितना सी अपना जी 2, सो दैट इज स्मॉल क्यू बाय 2 का स्केयर with the sign of minus, this is going to cancel, so q by 1 is equal to minus by q by 4। हाँ जी किस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है जी कैपिटल क्यू की। सो कैपिटल क्यू का नेचर की बन गया बेटा माइनस, तो मैग्नीट्यूड बेटा कितना बन गया देखो क्यू बाय 4। सो क्लीनियर की कंडीशन दोनों पूरियां, फस्ट कड़ी सी क्लीनियर और इक्विलिब्रियम कंडीशन दोनों पूरियां, फस्ट इज क्लीनियर ओके जी स्टेटमेंट ही दसदी सी। सैकेंड थिंग इज दे शुड बी नॉट ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, वो भी क्लीयर हो गई जी। थर्ड की सी दे शुड बी ऑफ डिफरेंट नेचर, नेचर भी क्लीयर हो गया। सो ये सीगा जी बहुत वधिया न्यूमेरिकल, ठीक है जी, तुहानूं फ्यूचर में बहुत काम आऊगा। नैक्सट न्यूमेरिकल आप प्रोसीड करते हैं। Now the second numerical 4-point charges capital Q, small q, capital Q, small q are placed at the corner of a square of a side small a as shown in the figure। बेटा देखो जी एक स्केयर तुहानूं बेटा डायग्राम पहले मिली हुई है जी, ठीक है जी। हर दी साइड कितनी है जी ए, तुहानूं पता चारे साइडां आप सामने की होणगियां जी बराबर होणगियां। चार चार दिते हुए दो छोटे क्यू जी दो कैपिटल क्यू। तुसीं करना की है जी फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द कैपिटल क्यू। तुसीं किसी भी कैप चाहे इस दी गल कर लो चाहे इस दी गल कर लो, तुसीं इहदे उपर देखना टोटल फोर्स कितनी एक्ट करदी पई है। इत्थे अपना प्रिंसीपल काम करता है प्रिंसीपल ऑफ सुपरपोजिशन। हुण इक्विलिब्रियम की गल गई, हुण प्रिंसीपल ऑफ सुपरपोजिशन काम कर रहा है। प्रिंसीपल ऑफ सुपरपोजिशन कह रहा है कि whenever one charge is surrounded by so many charges, जो एक चार्ज बहुत सारे चार्जेस आले दुआले इकट्ठा होगा वो प्रेजेंट होगा तो टोटल फोर्स जी उपर लगूगी वो सारे का की होगी वैक्टर सम होगी। सो मेरा वर्ड फिर आ गया अगे सी टोटल सम इज 0 फॉर इक्विलिब्रियम, पर इन द केस ऑफ सुपरपोजिशन यू शुड क्लैरिफाई इन द टर्म दैट कि जिस एक चार्ज है उनके सारे आले दुआले चार्ज पे है जोड़े उस चार्ज पर फोर्स लगूगी वो सब की होगी वैक्टर सम होगी और 0 नहीं होगी। 0 कितने च होगी इक्विलिब्रियम च होगी। कंडीशन तुहानूं दस दी सी मैं क्लीनियर होने जरूरी है, इक्वल साइन अलग अलग होना जरूरी है, मैग्नीट्यूड अलग अलग होना जरूरी है। सो वैक्टर सम आ गया तो तुहानूं चैप्टर वैक्टर भी क्लीयर होना चाहिए। वैक्टर विच एडिशनस आ गई तो वैक्टर एडिशनस अपने को दो तरह दी होंदियां ट्रायंगल लॉ ते पैरेललोग्राम लॉ ते पॉलीगन लॉ। सो आप डिपेंड करता है मतलब अपने उस लॉ नूं क्लीयर होना जरूरी है। किहड़े लॉ ट्रायंगल लॉ ते पैरेललोग्राम लॉ। सो ट्रायंगल लॉ ते पैरेललोग्राम नूं यूज होना चाहिए। सो मैं करूँगा कि देखो जी बिल्कुल सिंपल है आ चार्ज देखो चार्ज साइन मुझे कोई नहीं है चार्ज मुझे साइन कोई नहीं है नैचुरली इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। सो आ प्लस आई प्लस 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 साइन दिस नहीं जी लो मान लो जी आप इहदे पर फाइंड कर लेंगे टोटल फोर्स पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर। इस फोर्स का नाम रखना मैं 1 2 3 4 ठीक है। इसका नाम मैं रख लिया जी फोर्स लगती पी सपोज करो चौथे ऊपर कौन लगा रहा है जी पहले वाला। फिर देखो फोर्स कौन लगा रहा है जी तीसरे वाला किंदे ऊपर जी चौथे वाले ऊपर। सो फोर्स एक्टिंग ऑन थर्ड बाय फोर्स एक्टिंग ऑन फोर सॉरी बाय थर्ड। देखो दो तो लगा गए एक तो मैं भी लगाऊंगा। सो फोर्स दिस इज गोइंग टू एक्ट विच साइड डायगनली। सो इस फोर्स का ना कि रख लेने बट एफ
4 फोर्स दूजी चौथे पर लगती पई है, दूसरा लगा रहा। ओके बेटा देखो जी हुण अपना एक इत्थे सिंपल जिहा तुहाडे सामने ही है वैक्टर की गल हो रही सीगी, तुहानूं किहा सी लॉ कम आउणगे, ट्रायंगल पैरेललोग्राम बन गया अपना, दो साइड्स पता, ठीक है जी। आ की तुहाडा बन गया रिजल्टेंट। सो हुण आपां देखो जी मेन गल देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड दी फोर्सेस। फर्स्ट इज योर F41। हाँ जी की फॉर्मूला सी 1/4πε0। नेक्स्ट इज योर Q इंटू Q बाय, हाँ जी 41 Q इंटू स्मॉल Q, सॉरी बेटा Q इंटू स्मॉल Q बाय डिस्टेंस स्केयर है, डिस्टेंस की होगा A द स्केयर। हाँ जी हूँ देखो 4-3 देखो, मैग्नीट्यूड पहले मैं ले रहा नाल जान 1/4πε0। हाँ जी हूँ की जी 4-3 का ओमी Q स्मॉल Q, डिस्टेंस बेटा कितना A स्केयर, इनका मतलब आ दोनों फोर्सेस की हो गए इक्वल इन मैग्नीट्यूड। इनका मैं नाम रखना F, सिंपल, ठीक है जी, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड की पे आपस में इक्वल पे अपना रखता एक F। हूँ डायग्राम ध्यान देखा जाए दोबारा, डायग्राम की कह रही है कि देखो हूँ आ फोर्सेस इक्वल हो गई, आ रिजल्टेंट फाइंड करना है। सो पैरेललोग्राम लगाओ बेटा, की फॉर्मूला से अपना F इज इक्वल टू F स्केयर, विच होंदा फॉर्मूला की है F1 स्केयर प्लस F2 स्केयर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। सो मैं F सेम है जी F1 F2, सो F स्केयर प्लस F स्केयर 2F1 F2 cos। हाँ जी बेटा एंगल देखो ध्यान नाल, एंगल कितना बन रहा है, सब नूं दिख रहा है 90 डिग्री। सो cos ऑफ 90 तो cos 90 सब नूं पता है, cos 90 कितना होंदा जी 0। सो कितना बन गया अपने को 2F स्केयर प्लस 0। सो F बिकम रूट ऑफ 2F। हाँ जी इस F की वैल्यू में तो वैल्यू पता है, तो मैं हुणे क्या कहते हैं, ठीक है जी। सो जेड़ा आ रिजल्टेंट आया है, हाँ जी नाउ वी विल फाइंड द F42। ये तो निकले अपना रिजल्टेंट, रिजल्टेंट कितना था जी आ दो फोर्सेस का। हुण किहड़ी फोर्स फाइंड करनी है जी F42, ठीक है जी, क्लियर है जी। सो F42 का फॉर्मूला बेटा की होगा जी 1/4πε0 Q नूं ध्यान देखो बेटा किहड़ा किहड़ा Q पे अपने को दोनों कैपिटल Q जी। डिस्टेंस देखो जी सिंपल है, A है आ भी A है, अपनी पाइथागोरस थ्योरम लगा लो तुसीं, ठीक है A स्केयर प्लस A स्केयर, ठीक है जी। ये बन गया अपने को 2A स्केयर, ये बन गया रूट 2A, आ बन गया जी, इसे पुट कर दो। सो डिस्टेंस कितना बनया जी अपने को रूट 2A का स्केयर 1/4πε0 कैपिटल Q स्केयर बाय 2A स्केयर। हाँ जी सो फोर्स 42 ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਲਈ, फोर्स ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਕੱਢੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਆ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵੈਕਟਰ ਸਮ ਵੀ ਕੱਢੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਉਨ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਸਮ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ small f। ਸੋ ਟੋਟਲ ਫੋਰਸ, ਨਾउ ਲਿਸਨ हियर, टोटल फोर्स F इज इक्वल टू F की है वैक्टर सम पैरेललोग्राम का सम, F42 की है डायगोनल दी फोर्स। जे मैं दोनों का करता कि सम तो मैं की कर लिया टोटल होंदा रिजल्टेंट, की फाइंड कर लिया बेटा मैं रिजल्टेंट। सो इस तो बाद कैलकुलेट कर सकते हो इनू आ कॉमन, उदों सिमिलरली अपने को आ पाई फोर्स इस वैल्यू पुट कर दो रूट 2 F अपने को सीगा 1/4πε0 कैपिटल Q स्मॉल Q बाय K स्क्वायर। सो दोनों तुम प्लस कर दोगे अपना आंसर आ जाऊगा
ठीक है जी, यही अपना क्वेश्चन है। दोबारा फिर सुन लो करना की है, मैं फिर इस क्वेश्चन वापस आ रहा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा जिहा बच्चे ने समझ के करना जरूरी है। 4 चार्ज दिते हुए सीगे, ठीक है जी, आप फोर्स किहदे उपर कढनी सीगी, कैपिटल के उपर कढनी सीगी। ठीक है जी, कैपिटल क्यू आ मान लो चाहे आ मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी। ठीक है जी, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपैल ईच अदर, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपैल ईच अदर नाम देते सीगे। फिर एक आ भी पॉजिटिव पॉजिटिव रिपैल सीगा, इन्हें दोनों जोड़ के एक ही बनया सी पैरेललोग्राम। उस पैरेललोग्राम रिजल्टेंट का नाम की रखा सी मैं, स्मॉल एफ। एक डायगोनल आंसर आ रहा सी कि वो 4f2। सो इस स्मॉल एफ भी इस पासे ही है। ठीक है जी, स्मॉल एफ भी। सो दोनों एक डायरेक्शन हो गया, जो दोनों एक डायरेक्शन किया आप सम। देखो 4 1 फाइंड की सी, 4 3 फाइंड की सी, दोवें वैल्यू सेम सी। आप नाम ले स्मॉल कैपिटल एफ। रिजल्टेंट फाइंड किया कि लॉ लगाया सी, पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है जी, एंगल कितना बनाया सीगा 90। सो वैल्यू पुट कर दी सी इत्थे। F42 का सीगा किस चीज़ सी, डायगोनल दी। सो टोटल फोर्स दोनों डायरेक्शन की सी, सेम सेम करके मैं किया दोनों नू ऐड। ठीक है, फर्दर यू सॉल्व। लो बेटा अपन तीसरे क्वेश्चन वाल जाने हैं। ठीक है, 2 पॉइंट चार्जेस हैविंग इक्वल चार्जेस, दोनों चार्ज बराबर है, सैपरेटेड बाय डिस्टेंस 1 मीटर। लो जी, दो चार्ज पे है, डिस्टेंस 1 मीटर है, फोर्स कितनी एक्ट होंदी पई है 8 न्यूटन दी। What will be the force experienced by them if they are held in water at the same distance where dielectric constant of water is 80? So मेरा बेसिक्स फिर यूज़ हो गए थे। हुण मेरा बेसिक्स कितने यूज़ हो रहा है, एक मीडियम है, एक हवा वैक्यूम। सो वैक्यूम ते मीडियम बोथ आर प्लेस्ड हियर नाउ। ठीक है जी, सो कंसैप्ट का लगावांगे जी, डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट आ वो अपन पहले पढ़ चुके हैं, दैट इज के इज इक्वल टू फोर्स वैक्यूम टू फोर्स मीडियम। हाँ जी, ये पता जी अपन कितना जी 80। फोर्स वैक्यूम का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। सो चार्ज इक्वल है, तुम मान लो जी कैपिटल क्यू, डिस्टेंस तुम्हें पता कितना है जी 1 स्क्वायर। फोर्स इन मीडियम यू वांट टू फाइंड, फोर्स इन मीडियम। सेकेंड थिंग, दिस वैल्यू इज आल्सो गिवन। ये वैल्यू बेटा कितनी दी अपन 8 न्यूटन। सो 80 इज इक्वल टू 8 बाय फोर्स इन मीडियम। सो फोर्स ऑफ मीडियम बिकम 8 बाय 80। सो कितनी बन गई जी 1/10। इनका मतलब पहला ना फोर्स घट गई। सो दो चार जो पार्टिकल पानी च रखांगे आप तो फोर्स नैचुरली की होगी, उन्होंने डिक्रीज होगी। कितनी डिक्रीज होगी 1/10 रहेगी। इनका मतलब की बनया कि जो दो पार्टिकल जो आप पानी च रखते हैं, किसी मीडियम च रखते हैं, तो उन्होंने फोर्स पहले नालों की होंगी है जी घट जाती है। वो डिपेंड किहदे उपर करती है जी, नेचर ऑफ द मीडियम, दैट इज योर डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट। लो बेटा चौथा क्वेश्चन अपना आ गया, 2 इंसुलेटेड चार्जेस चार्ज कॉपर सफीयर ए एंड बी। दो बेटा सफीयर पे है कॉपर दे, ए ते बी इक्को साइज है, उन्होंने पर चार्ज कितना क्यू, एक दूसरे पर कितना क्यू बी। ये थर्ड सफीयर सी, तीजा सफीयर सी आ गया, साइज भी की पे जी सेम है बट अनचार्ज, मतलब चार्ज नहीं है। इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द फर्स्ट, देन इन कॉन्टैक्ट विद सेकेंड एंड फाइनली रिमूव्ड फ्रॉम बोथ। वट विल बी द चार्ज ऑन ए एंड बी। देखो सिंपल जी बात है कि जो कोई दो चार्ज पार्टिकल पे है, तीसरा अनचार्ज पार्टिकल उन्होंने जोड़ता, तो उत्थे प्रॉब्लम की होगी, जोड़ा चार्ज है वो की होगा अपना रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। रीडिस्ट्रीब्यूट किस तरह होंगे जी, जिमें 50% चार्ज वो लै जूगा, 50% चार्ज वो लै जूगा। सिंपल जो मैथड है जी। देखो सपोज करो इनिशियली ए सफीयर चार्ज कितना क्यू ए, सेकेंड थिंग इज योर बी सफीयर, बी सफीयर को चार्ज बेटा कितना है जी क्यू बी। हुण देखो ए रब जी कितना किते है जी थर्ड चार्ज, वो की अपने को अनचार्ज है तो आइडेंटिकली। सो नवा चार्ज ए उपर कितना होगा जी क्यू ए डैश, रब किया अद्धा अनचार्ज लै गया, अद्धा उनके को रह गया। सो कितना रह गया अपने को जी
50-50 दैट इज QA/2। हाँ जी, हुण सैकेंडली हुण C को चार्ज इस टाइम कितना हैगा जी QA/2 हैगा। हुण यही C कितना रब हो गया जाके B नाल। देखो जी C को नीचली चार्ज है, सो देखो जी B हुण B को नवा चार्ज कितना आऊगा QB'। C को चार्ज कितना सी QA/2, ये आया तुहानूं पता लग गया 50% उहदे तो थ्रू आया। सैकेंडली हुण चार्ज कित्थों आऊगा, रब कितना कीता तुसीं B नाल, पर आपां हमेशा रबिंग तो बाद की हुंदा चार्ज की हो जाता है हाफ। सो नवा चार्ज QB पर कितना बन गया जिन्ना C कोल पहला सी प्लस जिन्ना B कोल सीगा डिवाइड बाय 2, because whenever charged body is going to be rub with uncharged body, or whenever two bodies are going to be rub with each other, the charge going to be redistribute equally between them। ठीक है जी, दोनों में चार्ज की होगा जी हमेशा की होगा जी इक्वल वंडिया जाऊगा। यही अपनी फिलोसफी है, इनू तुसीं याद रखना है। इस तरह न्यूमेरिकल कंसैप्चुअल बड़े ईजिली सॉल्व होणगे। ठीक है जी, आपां जल्दी अगे चलांगे नैक्सट वीडियो ते। ठीक है, जिन्हें आप नैक्सट इलैक्ट्रिक फील्ड चैप्टर के न्यूमेरिकल तो कंसैप्चुअल करांगे। थैंक यू।